સ્વામીજી કહેતા કે જે ધર્મ ગરીબોને અન્ન ન આપી શકે અને વિધવાઓના આંસુ ના લૂછી શકે એ ધર્મ શું કામનો. તેમણે સાયન્સ અને સ્પિરિચ્યુઆલિટી આ બંનેનો સંગમ કર્યો. વિશ્વના સર્વોત્તમ પ્રતિભાશાળી વૈજ્ઞાનિકોની સૂચિમાં નિકોલા ટેસ્લાનું નામ મોખરે છે. આપણે વીજળીને લગતી શોધ માટે થોમસ આલ્વા એડિસનનું નામ યાદ રાખીએ છીએ, પરંતુ વીજળીની બાબતમાં એસી અને ડીસી બહુ મહત્વના શબ્દો છે, જેમાં ડાયરેક્ટ કરંટ એ થોમસ આલ્વા એડિસનની શોધ હતી, જ્યારે પૂરા વિશ્વને ચકાચૌંધ કરી દેનાર ઓલ્ટરનેટિવ કરંટની શોધ એ નિકોલા ટેસ્લાના નામે છે. નિકોલા ટેસ્લા પોતે વિવિધ પ્રકારની શોધના કારણે મશહૂર છે, જેમાં રેડિયોની શોધ માટે આપણે માર્કોનીનું નામ યાદ કરીએ છીએ અને માર્કોનીને નોબેલ પ્રાઇઝ પણ મળ્યું હતું. પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે આ શોધ પણ નિકોલા ટેસ્લાએ કરી હતી અને તેના જ કારણે જ્યારે માર્કોનીને નોબેલ પ્રાઇઝ મળી ગયું એ પછીથી થોડા જ વર્ષોમાં એક કોર્ટમાં એમની સામે કેસ થયેલો અને એમની જે શોધની પેટન્ટ છે એમને રદ કરવામાં આવેલી. ફોર્સ અને મેટર વિશે ટેસ્લાના મનમાં ઘણી બધી દ્વિધા હતી. સ્વામીજીએ સંસ્કૃતના વેદોમાં જે ઉલ્લેખ હતો તેના આધારે તેમની તુલના પ્રાણ અને આકાશ સાથે કરી અને વૈદિક કોસ્મોલોજી વિશે ટેસ્લા સાથે ઘણી બધી વાતો કરી. એ પછીથી ટેસ્લાએ ઘણી બધી શોધો કરી, જેમ કે આર્ક લાઇટિંગ, ઓલ્ટરનેટિંગ કરંટ મોટર, પાવર જનરેશન અને ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમ. આ બધામાં જે સિસ્ટમના ઇલેક્ટ્રિકલ કન્વર્ઝનની વાત હતી એ બધામાં વૈદિક ટર્મિનોલોજીનો ઘણો બધો ઉપયોગ ટેસ્લાએ કરેલો. ટેસ્લા સોસાયટીમાં જે ઉપલબ્ધ દસ્તાવેજો છે એમાં પણ આ બધી શોધોની સાથે સ્વામીજી સાથે એમની થયેલી વાતચીતની ઉલ્લેખ કરી અને જણાવવામાં આવ્યું છે કે ભારતીય વેદોનો ઘણો બધો ઉપયોગ ટેસ્લાના જીવનમાં થયો છે. યોકોહામાથી વાનકુવર જતા સ્ટીમરમાં જમશેદજી તાતા અને વિવેકાનંદજીની મુલાકાત થયેલી. આ મુલાકાતે પૂરા ભારતની તસવીર બદલી નાખી. જમશેદજી તાતા ભારતમાં સ્ટીલ ઉદ્યોગ સ્થાપવા માંગતા હતા. સ્વામીજીએ એમને કહ્યું કે ભારતને આત્મનિર્ભર બનવું જરૂરી છે. મોડર્ન સાયન્સ વિના ભારતનો વિકાસ શક્ય નથી. એ સમયમાં એ જરૂરિયાત હતી. તાતાએ એ સમયે વિદેશી ટેકનોલોજીની મદદથી સ્ટીલ પ્લાન્ટ સ્થાપ્યા, પણ સાથોસાથ સ્વામીજીની આત્મનિર્ભરતાની વાતને ગળે ઉતારી અને ભારતમાં સાયન્સ રિસર્ચ સેન્ટરની પણ સ્થાપના કરી. दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा अपने दिल की सुनो. खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है. जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी. एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है. किसी की निंदा ना करें. अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं. अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए. उम्मीद को हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद के भरोसे ही हम सब कुछ वापस ला सकते हैं. सभी को मरना है. सज्जन भी मरेंगे और दुर्जन भी मरेंगे, गरीब भी मरेंगे और अमीर भी मरेंगे. इसलिए निष्कपट होकर जीवन जियो. जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जीवन का होना बहुत जरूरी है. एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ. ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है. एक विचार लो और उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो. उसी विचार के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और उसी को जियो. दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं. अपने में बहुत सी कमियों के बाद भी हम अपने से प्रेम करते हैं, तो दूसरों में जरा सी कमी से हम उनसे कैसे घृणा कर सकते हैं. लक्ष्य के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उस लक्ष्य के लिए फिर से जंग कर सको. जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते. कुछ मत पूछो,
बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। यह कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जोखिम लेने से भयभीत ना हो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, और यदि आप हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। समय का पाबंद होना लोगों पर आपके विश्वास को बढ़ाता है। जब कोई विचार विशेष रूप से हमारे मन पर कब्जा कर लेता है तो वह वास्तविक में भौतिक या मानसिक स्थिति में बदल जाता है। जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो यह सुनिश्चित कर लें कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दिन में कम से कम एक बार खुद से जरूर बात करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गंवा देंगे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। प्यार वो चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनकी जमकर मजे लेते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हम शतरंज नहीं खेलते क्योंकि दुश्मनों की हमारे सामने बैठने की औकात नहीं है, और दोस्तों के सामने हम चाल नहीं चलते। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले आज्ञा का पालन करना सीखना चाहिए। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। स्त्रियों की स्थिति में सुधार ना होने तक विश्व के कल्याण का कोई भी मार्ग नहीं है। भला हम भगवान को खोजने कहां जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। प्रसन्नता अनमोल खजाना है, छोटी छोटी बातों पर उसे लुटने न दें। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। एक नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं है। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं है, बल्कि अनुभवों के माध्यम से सीखना है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। उस व्यक्ति में अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। भय ही पतन और पाप का मुख्य कारण है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना, स्वयं पर विश्वास करो। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। स्वयं की सीमा को जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। सज्जन व्यक्ति के साथ मित्रता उस गन्ने के समान होती है जिसे आप कितना भी तोड़ो, दबाओ, चूसो, यहां तक कि उसे पीस भी डालो, हर बार उसमें से केवल और केवल मिठास ही निकलती है। अच्छे दोस्तों की तलाश हम नहीं करते, हम तो जिसे दोस्त बनाते हैं वो भी हमारे लिए अच्छे बन जाते हैं।
अच्छे लोगों की खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कायरों की तरह चुपचाप असहाय जिंदगी जीने की बजाय शेरों की जिंदगी जियो, क्योंकि शेर कभी अपने हालातों से समझौता नहीं करते। लोग कहते हैं किसी एक के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने के बाद भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। केवल ज्ञान होने से कोई फायदा नहीं है, वह कब कैसे इस्तेमाल किया जाए इसका ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। दो बातें इंसान को अपनों से दूर करती हैं, एक तो उसका अहंकार और दूसरा उसका वहम। जिस व्यक्ति ने सच्चे आनंद को प्राप्त कर लिया है वह किसी भी सांसारिक वस्तु के ना मिलने से परेशान नहीं होता। बुरे संस्कारों को दबाने का एकमात्र साधन है कि हम लगातार अच्छे विचार अपने दिमाग में लाते रहें। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। सफलता प्राप्त करने के लिए अटल धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। धन्य हैं वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। सब कुछ खोने से बुरा क्या है, वो उम्मीदें खोना जिसके भरोसे पर हम सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हैं। नेतृत्व करने वालों के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं होता। कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों ना हो, मजबूत इरादे और दृढ़ संकल्प से उन्हें सुलझाया जा सकता है। यदि तुम संसार पर उपकार करना चाहते हो तो जगत पर दोषारोपण करना छोड़ दो। एक समय आता है जब मनुष्य अनुभव करता है कि थोड़ी सी मनुष्य की सेवा करना लाखों जप ध्यान से कहीं बढ़कर है। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। जो मनुष्य इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसे एक ही जन्म में हजारों वर्ष का काम करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मोटिवेशनल वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।